Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So it's a very, very powerful tool how you are interpreting या किस तरह से perceive कर रहे हो वर्ल्ड को. ये बहुत ही powerful tool है खुद को समझने के लिए. आप perceive करते कैसे हैं? Like, okay, you perceive world as per your value structure. जिन चीज़ों का value करते हैं, जिनसे आप motivated feel करते हैं. What are the things that you feel motivated? How do you even form your value structures? And यहाँ पे Boss and Binswanger थोड़ा डिसएग्री करते थे एंड इट्स अ वेरी टफ डिसएग्रीमेंट बिकॉज बिन्सविंगर का मानना था कि आप चीज़ों को देख रहे हैं एंड परसीव कर रहे हैं through your own filtering mechanism. Again, how you filter them, your likings, your disliking, or you find meaning in them because you're interpreting meaning in them. जबकि बॉस का ये मानना था कि not exactly, you don't find things as per your filtering या आप उसमें meaning interpret नहीं कर रहे या अपनी value interpret नहीं कर रहे and it's just a normal thing, लेकिन that thing itself has a value and a meaning implicit in it. यानी उसका meaning and उसकी value automatically on its own आपके सामने reveal होती है. And with a lot of such debates, the correct way to see things was that कि both things are there, right? ये दोनों चीज़ें होती हैं. And you see that in the movie Harry Potter where they play this game called Game of Quidditch, right? And उस game में क्या हो रहा होता है? क्योंकि it's not a simple game. It's a game जहाँ पे दो game parallelly खेले जा रहे हैं. One, an ordinary game, and the other game जो सीकर खेलता है when it's chasing Snitch जो कि वो golden ball with wings है. And when you see that, it's something that makes people curious and it's something that makes people extremely pulled towards. And the rule of the game are also like that कि बाकी सब ordinary game खेल रहे हैं उस game में, लेकिन सीकर is playing a game to chase Snitch and उसका एक ही गोल है, chase that Snitch, and जहाँ Snitch जाता है वहाँ उसे chase करना है, and the moment it gets the Snitch, game over, they win. And that's what your curiosity is. Things that makes you curious, things that pull you towards them are like that. वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन को ग्रैपल करती है, आपको बहुत क्यूरियस बनाती हैं, are those things which have got their own shine. It's like that, which have got their own inherent value, and they just come in front of you. Yeah, they just grapple your attention. It's not like that you decide कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है या मैं किस चीज़ को लेके क्यूरियस हूँगा. हम ये डिसाइड नहीं करते consciously. It happens to us. Something that catches our attention, a aesthetically beautiful thing or a person or something that we find really valuable, a goal or aim, a particular field that we want to pursue, वो सिर्फ हमारे attention को इस तरह से capture करती है कि हम completely captivate हो जाते हैं. It's like you can't think about anything else but that thing, and it makes you curious and it calls upon you. It tells you to chase it, and before you consciously realize, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हर endeavor में chase करें. उस curiosity, you follow where that curiosity goes. You pay attention towards your curiosity. जो चीज़ें आपको क्यूरियस कर रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील हो रही हैं, आप उन्हें फॉलो करने लगते हैं, आप उन्हें चेज करते हैं. एंड यू कैन से दैट, डिड यू कंस्ट्रू दैट, डिड यू मेक दैट हैपन? एंड यू वुड बी लाइक, no, not really, it just called upon me, and that happens a lot of time when you ask people कि आप इस चीज़ में क्यों इतना interested है. and हो सकता है कि आप अपने आप को एक बहुत ही logical and rational explanation दे later on कि maybe because of these things I got interested in this field, या maybe because of this I really like this person. The real answer जो आपको भी पता है and somewhere a part of you is completely convinced about it, you do not know, but you just couldn't stop thinking about it. And that's what being curious about something or being extremely interested upon something does to you. आपको नहीं पता है क्यों हो रहा है, लेकिन you can't stop. You are completely enamored and engrossed in it. अगर आप नहीं फील कर चुके हो, लेकिन एक फेज ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में completely engaged है. You'll find yourself at the right place at the right time and you'll be chasing something which you find extremely meaningful. It's like वो आपको अपनी तरफ pull करता रहेगा. एंड वो इस तरह से पुल करेगा कि आपको उसमें एफर्ट लगाना है, उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन उस मेहनत में, उस एफर्ट में आपको इतना मज़ा आएगा दैट देयर इज़ नथिंग एल्स दैट यू वुड वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. देयर इज़ नथिंग एल्स और देयर इज़ नो वन एल्स यू वांट टू बी अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन और दैट रिलेशनशिप. सो द होल आइडिया ऑफ द क्यूरियोसिटी भी कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को अमैलगमेट करता है कि
वो वैल्यू, वो मीनिंग उस चीज़ में या उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन में इनहेरेंट होती है. इट्स देयर एंड इट कॉल्स अपॉन यू, इट पुल्स यू टुवर्ड्स इट. एंड आपका खुद का परसेप्शन एंड इंक्लिनेशन फिर होता जाता है, एंड यू गो एंड यू चेज इट इन द वर्ल्ड. एंड व्हेन यू गेट इट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी कूल एलिमेंट एसोसिएटेड विद द क्यूरियोसिटी, कि आपकी क्यूरियोसिटी रैंडम नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस चीज़ को लेके आप क्यूरियस होंगे और किस चीज़ को लेके आप क्यूरियस नहीं होंगे, या किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा. नहीं, इट फाइंड्स यू, यू डोंट फाइंड इट. लेकिन इट्स नॉट रैंडम. एंड यहीं पे बिन्सविंगर का जो व्यू पॉइंट था वो अप्लाई होता है. वो रैंडम इसलिए नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपसे भी या आपकी इनहेरेंट वैल्यू स्ट्रक्चर से अलाइन करती है, इसीलिए वो आपको पुल कर पाती है. एंड वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है एक साथ में कि आप उनको सेपरेट करके इंडिविजुअली नहीं देख सकते. यू हैव टू सी देम टुगेदर, राइट? एंड यू आस्क दिस क्वेश्चन कि वो क्यूरियोसिटी आपको लेकर कहाँ जा रही है. वेयर डज योर क्यूरियोसिटी टेक्स यू? wherever it wants to, and it has got something of value. And you'll find people who are extremely sometimes successful, it's like, I didn't do anything. It's something like God made it happen, or this world, this universe made it happen. I was just following my intuition. या मैं सिर्फ अपनी curiosity या अपने intuition या अपनी उस interest को, उस passion को follow कर रहा था, and things just happened to me. Very, very cool concepts if you really think deeply about it, कि how much we control things and how much we don't really control things, and what will happen if you just follow that thing which is calling upon you, whether it's a duty, whether it's a responsibility, या फिर वो किसी भी तरह का कोई और passionate work है. What happens अगर आप उसे follow करते हैं? What happens जो वो आपकी calling है, जिसे हम destiny कह सकते हैं या जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, उस calling को जब आप answer करते हो, you actually chase that calling, you actually answer that calling. You just don't know what's going to happen until unless you do that. And यही ideas and concepts आपके subjective experiences को lay down करते हैं, that we live in an objective world and चीज़ें objectively run कर रही है. हमारे पास में scientific explanations भी हैं काफ़ी सारी चीज़ों का, लेकिन हम फिर भी इस दुनिया को जीते अपने subjective experiences के ज़रिए हैं. So मेरे लिए जो चीज़ experientially painful है, हो सकता है वो किसी और के लिए experientially pleasant होगी. And आप किस तरह से उस curiosity and उस experience से interact करते हैं, वो ले डाउन करता है आपका फ्यूचर, या वो ले डाउन करता है कि व्हाट इज़ द पाथ दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस आइडिया को भी रीइटरेट किया जाता है कि ऑल दो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, बट still there are things that you can influence your control upon. You can still decide the path of your journey. बियॉन्ड एंड अलावा आप कुछ नहीं देख पाते. एंड जब आप उस कॉलिंग को फॉलो करते हैं एंड यू चेज एज अ सीकर, यू आर अ सीकर एंड यू आर चेजिंग दैट स्निच, दैट गोल्डन शाइनिंग लाइक सन विथ विंग्स, जो कि कहीं पे भी आपको, द विंग्स, व्हाट डज विंग डिफाइन बेसिकली, कि वो कहीं पे भी जा सकती है, वो आपको कहीं पे भी लेके जाएगी, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो वेयर इट्स गोइंग. व्हेन यू डू दैट, तो ना सिर्फ आपकी साइकी चेंज होती है, आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, क्योंकि वो अनलॉक कर रहा है, या सॉर्ट ऑफ आपका जो एक पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड उसको सामने लेके आता है. You do not know what is the greatest height or what is the limit to your own capacities. हमें नहीं पता कि किस सीलिंग पे जाके आपकी पोटेंशियल रुकेगी, किस सीलिंग पे जाके आपकी लिमिट रुकेगी, बट अपनी कॉलिंग को, अपने फेट या अपनी डेस्टिनी को फॉलो करते हुए यू कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेशन आपकी साइकी भी चेंज होती है. यू इवॉल्व, नॉट ओनली बायोलॉजिकली you evolve in your mindset, you evolve in your frameworks, you evolve in your understanding of the world and the people. So the path of exploration आपके लिए open up करता है वर्ल्ड को वाइडली, एंड उस एक्सप्लोरेशन के ज़रिए, उस जर्नी को अंडरटेक करने के ज़रिए आप में चेंजेस आते हैं, एंड वो चेंजेस profound changes है, they're definitely going to take you a level up and not a level down. Unfortunately कई बार चीज़ें हैं कि हम गलत रास्ते पे भी या गलत चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, but I think what happened when you are getting influenced by wrong stuff is that कि कहीं ना कहीं inherently आपको ये intuitively एंटिसिपेशन होता है, अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, दिस इज़ नॉट समथिंग आई शुड बी डूइंग और फॉलोइंग. एंड इस इंट्यूशन को जब आप डिफाई करके आगे बढ़ते हैं, मे बी रैशनलाइज करते, ओवर रैशनलाइज करके, देन समटाइम्स यू जस्ट गेट ऑन टू अ वेरी वेरी अगली पाथवे. समवेयर द इंट्यूशन का आपकी रैशनैलिटी के साथ में अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट सेज दैट योर बॉडी नोज बिफोर यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू कैन एक्सप्लेन देम आर्टिकुलेटली. हर चीज़ को बहुत क्लियर वर्ड्स में समझाना
एंड एक्सप्रेस करना इज समथिंग जो हम बाद में करते हैं। आपका साइकोलॉजी, आपका जो बायोलॉजी है, पहले ही आपको इंडिकेशन दे देता है। इसलिए व्हेन यू आर डूइंग, because of that, when you're doing something which is not right, which is either unlawful or it's immoral, your psyche doesn't really get excited about those things, right? आपकी body and आपकी psychology में वो nervousness, वो fear, वो एक kind of frustration, plus you have this pain like sensation inside that runs through your body when you're doing, when you know, जब आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ गलत है, सही नहीं है, and शायद आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को लॉजिकली कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नो, आई हैव द राइट रीजंस फॉर डूइंग इट, या मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी बॉडी फिर भी शेकअप करती है, एक्सूड करती है। यू डोंट डू इट इन अ वेरी काम स्टेट ऑफ माइंड, यू डू इट इन अ वेरी वेरी scary, fearful state of mind. So what we are trying to say here is that your body understands way before you understand, and that's why you'll know. So जब आप अपनी लाइफ के उस फेज पे होंगे, when you feel that everything is working for you, you're at the right place at the right time, and you're chasing something of value, which is your calling, which is your like fate, destiny, whatever the name you want to give. Your body will give indication. आपकी साइकोलॉजी एंड आपकी बायोलॉजी इंडिकेशन देगी। आपको अपनी बॉडी में उस चीज़ से रिलेटेड पेन फील नहीं होगा। यूल फील एक्साइटेड अबाउट इट, यूल फील इंथुजियास्टिक अबाउट इट। इनफैक्ट नो मैटर आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, यू वोंट फील टायर्ड। ऑब्वियसली बायोलॉजिकली आप थोड़ा बहुत टायर्ड फील करेंगे, बट नॉट इन योर साइकी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू पैन लैब पॉडकास्ट। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, if you find it useful, please do subscribe and like our channel and share if you can.